sir, you can start. Chalo, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Can you hear? Can you hear me? हाँ. Yes, sir. Good. Yes, sir. Yes. I see some people missing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yogesh Shukla is not seen. Yogesh Sukhadia is not seen. Prachi Dataukar is not seen. Anyway. Yogesh Sukhadia, I can see you now. Yes, sir, I have joined. Yeah, good. Okay. Once again, I welcome you to technically. आवाज येत नाही? निवेदिताला आवाज येत नाही माझा? येतो. निवेदिता, try to listen with headphones. तर फुल व्हॉल्यूम आहे माझ्याकडे पण आवाज नाही, headphones नाही आहे का? ओके ट्राय करते. Try with your headphones. पण बाकी सगळ्यांना येतोय ना? हाँ, येतोय सर, येतोय. थांबा, तिला जरा हेडफोन घालून येऊ दे. नितिन, हाउ आर यू? नितिन, तुम्हारा हाँ, कैसे हो? All good, sir. Thank you. Good. अनिल, आज घर पे बैठे हो? नहीं, शॉप पे हूँ ना, ऑफिस में हूँ. ऑफिस में? हाँ. Can you hear Nivedita? Good. Chalo, once again, I welcome all of you for the technically last session of Mani Upasana. Today is the 8th session of Mani Upasana. But we have decided we will do one more session of Mani Upasana. एक बोनस सेशन करेंगे मनी उपासना का नेक्स्ट वीक टू वाइंड अप मनी उपासना. बट टुडे इज द 8th सेशन, द सेकंड लास्ट सेशन. अभी आगे चलने से पहले आज बहुत कुछ बोलने जैसा है मेरे पास, और आप लोगों को भी बहुत सारा सुनने जैसा है आज, क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट सेशन है. लेकिन बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन टुडे, I would like to hear from you, since this is the second last session. What I would like to hear, मुझे कोई टेस्टिमोनियल नहीं सुननी आपसे, लेकिन आप ये जर्नी में, you have been there in the journey for almost 2 months. ये 2 महीने में आप लोगों में से किसी ने क्या महसूस किया? नंबर 1, आपके जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? नंबर 2, and what did the journey teach you? नंबर 3. कौन बात करेगा? Who will speak? So, Nitin. Yes, Nitin. Are you clear about what I want you to speak about? Yes, sir. Yeah, बताइए. So, sir, since we started this journey, it has been things started to shift a bit inside myself, which I felt. I have since we started, I felt that the more I practice, the more I'm in alignment, the more things happen for me. I'm talking about myself. So things have been shifting. I told you also earlier when I got that opportunity, and it's still there, for that matter. It's still there. They are still approaching me for another role. So that's there.
the insecurity and fear which I was having earlier, past year, is slowly shifting, has shifted majorly. I'm feeling very light from inside. I don't fear ke kal kya hoga, but as long as I'm continuing my practice, I'm feeling very good with this. Great. One thing you spoke, which is very important, that you are feeling a shift inside. Yes, sir. Remember, this is something very, very important, and I'm going to talk about this today. जो लोग मनी उपासना करते हैं और जिनको मनी उपासना समझ में नहीं आती, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जो लोग मनी उपासना करते हैं और जिनको मनी उपासना समझ में नहीं आती, वो लोग बाहर शिफ्ट खोजते हैं. They are in the process of expecting a change in their outside world. But remember one thing, the outside will change only when the inside changes. Yes, Nitin. Sir, I got really inspired, with this. Of course, everything what we do here, and then I've started writing different poems out of nowhere. Correct. I just sit, and in 5 minutes I write a poem, and then I decided to write a book also now, which I gave a title, which will be called "Everything Is Within." Very nice. The title also. Very nice. Very nice. So this is the shift which I forgot to tell you actually. No, this is very important. और all of you listen to me. आप लोग मनी उपासना में आए हैं तो कुछ पाने के लिए आए हैं. Okay, all of you want something. Now, except for Mr. योगेश सुखाड़िया, जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है, और मैं पहले सेशन में शायद वो नहीं थे, एंड मंजू देगावकर, ये दो लोग छोड़ के I really don't know with what idea you have joined मनी उपासना. किस लिए मनी उपासना के ये प्रवाह में आए हो, ये मैं नहीं जानता. लेकिन जो भी हमें करना है महसूस, वो जब तक भीतर नहीं है, तब तक जो हमें ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में चाहिए वो नहीं होता, क्योंकि वी डोंट गेट अलाइंड. और नितिन, ये बहुत लोगों का अनुभव है. जो लोग अलाइनमेंट में आने लगते हैं, या तो उन्हें गाना गाने की इच्छा होती है, या तो उन्हें कविता करने की इच्छा होती है, लिखने की इच्छा होती है, क्योंकि ये सब जो फाइनर थिंग्स है हमारे जिंदगी के, वो ऊपर आने लगते हैं. जैसे आप में से जो लोग कभी प्यार में पड़े होंगे, प्यार में पड़ने के बाद आदमी कवि बन जाता है. I don't know whether you people have experienced this or not, but जब प्यार नया नया होता है, कितनी बार भी हो, कई लोगों के जिंदगी में बहुत बार प्यार होता है, वो बात अलग है, लेकिन हर एक बार जब प्यार होता है, तब हम सब कवि बन जाते हैं. कविताएं शुरू हो जाती है. कैसे शुरू हो जाती है? तब तक तो हम कवि नहीं थे. प्यार में पड़ने के बाद कवि कैसे होते हैं? क्यों? देयर इज, जो भीतर एक हार्मनी है, वो हार्मनी हम महसूस करने लगते हैं. वो दूसरे में, वो दूसरे से इतने एक रूप हो जाते हैं कि हमारी जो फाइनर क्वालिटीज हैं, कई लोग तो क्या कहते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं, चित्र निकालने लगते हैं. All these things start happening in people's life. Not that they will happen in everyone's life, but most of the time. So
it's a very good खूबसूरत दिखने sign. लगते हैं कुछ लोग, हाँ क्या? कुछ लोग खूबसूरत दिखने लगते हैं। हाँ, एक्चुअली हमारे पास हमारे कम्युनिटी में तो इतने लोग हैं जो जब आए, there are people with us who are there for more than 10 years. जब आए they were normal people, but as they started getting into alignment, उनकी टोटल क्या कहते हैं, लुक बदल गया। जो ये भी प्यार में पड़ने के बाद होता है। आदमी प्यार में पड़ने के बाद खूबसूरत दिखने लगता है। इट्स गेटिंग इनटू अलाइनमेंट, और ये अलाइनमेंट का चक्कर एक बार आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो so many things will get aligned. ऐसा नहीं है कि जिंदगी में जो चाहिए वही सामने आएगा, लेकिन बहुत सारा अलाइनमेंट होने लगता है। And that is what we are aspiring for in Mani Upasana. That is what we want in Mani Upasana. इसलिए ये जर्नी ने आप लोगों को किसी को और कुछ ये 2 महीने में ऐसा अंदरूनी एक्सपीरियंस आया क्या, ये मेरा सवाल है। यस निवेदिता। सर, जब से मैंने टैपिंग शुरू किया है, एक्चुअली मनी उपासना के पहले से ही मैंने टैपिंग शुरू किया था, तो ऐसे लगा कि घटनाएं ऐसे सहज ही घटती जा रही है, और जो भी कुछ घटनाएं जो मुझे चाहिए थी वो नहीं भी हुई ना, तो भी मुझे उसके लिए कोई एंजाइटी या दुख या गुस्सा नहीं आ रहा है। वेरी गुड। हाँ, जो पहले आता था, टैपिंग से पहले आता था, और बाद में ऐसा लगा जैसे मनी उपासना शुरू हो गई, टैपिंग एकदम अलग अलग भावनाओं पे हमने टैपिंग किया, स्पेसिफिकली प्रोटोकॉल बना के, तो ऐसा लगा कि मेरे परसेप्शन चेंज हो रहे। तो वो परसेप्शन चेंज होने के बाद मैंने लास्ट टाइम तो मेरे सारे प्रोटोकॉल चेंज कर दिए, क्योंकि करने पड़े। और मुझे ऐसा लगा कि जो अननेसेसरी इम्प्रेशंस थे वो हटने के वजह से मेरे अंदर कोई कुछ तो सटल चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है। क्या हो रही है मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकती, वो तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम, लेकिन लग रहा है अंदर से। और ऐसा लग रहा है कि हमारे जो पहले से कलेक्ट किए हुए इम्प्रेशंस है, जिनकी वजह से हमें रस्सी भी सांप लगती थी, तो अभी रस्सी रस्सी दिखाई देती है, और रियल सांप का भी उतना डर नहीं लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एक्सपीरियंस। आप लोगों में से कितने लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है? कितने लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है? मैं धार्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं। कितने लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है? कोई है जिसको? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा, कोई हरकत नहीं है। अगर नहीं, सबको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट होता है ऐसे नहीं, बट स्पिरिचुअलिटी में अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो फ्रैंकली आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है ये समझना चाहिए। only then, because as you said, Nivedita, as you said, संजीवनीला Nivedita, as you said, I am not able to assess नहीं कर पा रही हूं मेरा ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। But when you will understand what spirituality means, you will be able to assess whether you are growing or not. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में अगर हम इंटरेस्ट दिखाने लगे और हमको अगर स्पिरिचुअलिटी समझ में आने लगी, तो द लोटस विद इन स्टार्ट्स ब्लूमिंग। दैट शुड बी आवर पर्पस। और आप लोग अगर मराठी समझते हैं, जो भी
ये गुरु पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमे के दिन रात को 9 बजे मेरा एक सत्संग है, फॉलोड बाय अ ध्यान. इफ यू हैव टाइम, फेसबुक लाइव पे है, ज्वाइन करिए. एंड if you really want to go deep into spirituality, do consider attending Shivoham. Please understand, I am not trying to sell Shivoham to any one of you, क्योंकि हमारा टारगेट 150 लोगों का है. उसमें से अभी अराउंड 20-25 तो बुकिंग हो गए हैं, रिमेनिंग 25 हो जाएंगे, बिकॉज ये अक्टूबर में है. शिवोहम इज इन अक्टूबर एंड इट इज एट Radisson Blu, Karzat, which is a very beautiful property, which is obviously a 5-star or more than a 5-star property. But besides that, क्योंकि हमने ऋषिकेश में भी शिवोहम किया है, हमने आश्रम में रह के भी शिवोहम किया है. But शिवोहम is all about understanding spirituality. What is spirituality? Okay, now I am asking you a very important. Before entering today's session, I have only 5 minutes now. Enter. आज का सेशन एंटर करने के लिए मेरे पास 5 मिनट है. एक सवाल मेरे जहन में अभी आया, वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से. What do you understand by spirituality? सही गलत छोड़ो, जो भी आपके मन में है. ज्योति, do you want to say something? ज्योति ने उंगली ऐसे किया है. सपना सर. नहीं, ज्योति शिंदे. सपना कुठं आहे? सपना मला दिसतच नाहीये. हा, सपना नाही. हा, त्याच्या आधी ज्योतीचा काय हात वर केला होता. हा, ज्योती, तुला आवाज येतो? सपना किधर है? सपना. हाँ सर. What is spirituality? ज्योति, I ज्योति, can't hear आपके you. यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है, आप थोड़ा बाद में कनेक्ट करो चाहिए तो. सपना. हाँ सर, स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप दिखाई नहीं दे रहे सर. हाँ, हेलो सर, स्पिरिचुअलिटी मीन्स खुद को जानना. हु एम आई. okay. Manju, you were saying something? जैसा तो आप कहते हो सर कि उस त्या गाभाला स्पर्श करा, तर त्या गाभापर्यंत पोहोचण्याची जर्नी म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी. Good. Anyone else? स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे आपण जे प्रत्यक्षात आहोत त्याच्यावरती स्थापित. बरोबर. कोण आहोत? तेच तर शोधायचं. ईश्वर. Okay, good. हाँ. Good. Nivedita, you were saying something? Spirituality is all about inner journey. जे काही सुख किंवा जे काही आनंदाची भावना आपण बाहेरच्या गोष्टींशी रिलेट करतो, ती ऍक्च्युली आपल्या आतमध्ये, कारण बाहेरच्या सगळ्या गोष्टी परिवर्तनीय आहेत आणि आतमध्ये जो आपला आत्मा आहे तो अपरिवर्तनीय आहे आणि त्याच्यात आपलं खरं सुख आहे, पण ते आपल्याला समजत नाही. आणि ते शोधण्याचं किंवा स्वतःला शोधण्याचं काम म्हणजे ती जर्नी म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी. Very good. What is your age? 46. Good. You are at the right age to understand spirituality. आणि हा जो शोध आहे हा ऍक्च्युअली. एक सर, एकच मिनिट. जे बोलत नाहीयेत ना त्यांनी प्लीज म्यूट करा. खूप आवाज येतोय सगळ्यांच्या इथनं मागणं. रेकॉर्डिंग खूप कॉम्प्रोमाइज होतं. The quest to understand this, what you are speaking, should start very early in life, but nevertheless
It should start sometime in life. And if अगर आपके जिंदगी में वो कभी ना कभी शुरू हुई है, तो you are very fortunate. So let us see. अगर शिवोहम में आ सकते हो तो we will जाऊया आर्ट. Also गाभा है. Who am I? Let us find out. Let us touch that. Awaken to it. किधर जाना? It's not a journey, because journey is from point A to point B. यहाँ पे A और B नहीं है. We don't have to go anywhere. We just have to realize, recognize. Anyway, enough of spirituality. Let's get back to Mani Upasana. आज मैं, because today is the 8th session, मैं आप लोगों को मनी उपासना का बेसिक फॉर्मूला और मनी उपासना में exactly what you should do to experience the effects of मनी उपासना, ये मैं इस पर मैं आज बोलने वाला. Okay. So at the 8th session at least, all of you will understand whether you are on the right track. Now listen to me very carefully. The entire formula of Mani Upasana is on A, B, C, D. मनी उपासना किस पर निर्भर है? फॉर्मूला इक्वेशन क्या है? A, B, C, D. What does A mean? What Sir, does A mean? Alignment, sir. Very good. कौन Alignment. बोला ये? Sir. कौन बोला? नितिन. Very good. Very good. यहाँ यहीं पर दिखता है कि तुम लोग अलाइनमेंट पे हो. Very good. A is alignment. B is ब्लॉक्स निकालना सर. very Block. good. Excellent. Very good. Blocks releasing process. C is slightly difficult, but C is when you get aligned. सुनो मेरी बात. आप जब अलाइनमेंट में आते हो, जब आप ब्लॉक्स रिलीज करते हो, तब सी घटित होता है. सेलिब्रेशन. Connecting, sir. Sorry, Connecting. Connecting with the Supreme. नो यहाँ सुप्रीम नहीं है. अभी इधर सुप्रीम पे जाने का नहीं है. काम नहीं सर. Chakras, chakras, वो चक्रा पे भी जाने का नहीं है. alignment, block. एसोटेरिक किधर भी जाने का नहीं. C is changing your frequency. Oh, sorry. When you get into alignment, when you release your blocks, your frequency changes. And D is the cherry on the cake. जिसको D समझ में आ गया ना, उसको ये फॉर्मूला समझ में आया. Manifestation. D में मैनिफेस्टेशन किधर से आता है? डैनिफेस्टेशन होना भैया. चलो चलो घुटने खुजाओ. Discipline. अरे सीक्रेट डी में है बॉस. डी समझ में आ गया तो मनी उपासना समझ में आ गया. डिटैचिंग. करेक्ट. कौन बोला ये? अनिल. अनिल. एक नंबर. डी इज डिटैचमेंट. बराबर.
मेरे को तो बहुत फायदा पड़ा है Yes, sir. अरे मेरे को भी फायदा पड़ा है, तुम्हारी क्या बात कर सब रहे में, हो? हेल्थ में, बिजनेस में, सब में। Are you understanding the formula? Alignment blocks release, changing one's frequency and getting detached from the result. निकाल दिमाग से ही निकाल लेने का. This is the formula of becoming successful in Mani Upasana. Okay, अभी very important, let us understand all these 4 points. What is the meaning of aligning? Aligning. क्या किससे align कर रहे हैं? तर युनिवर्स से मतलब Broad है ना? What do we mean by universe? जो आपण प्रकाश म्हणतो, जे आपणच आहोत ऍक्च्युअली, आणि युनिवर्स जो प्रकाश आहे त्याच्यासोबत अलाइनमेंट. पण तो कसा कसा होणार? जेव्हा आपण ब्लॉक्स काढू, ब्लॉक आपण नंतर काढूया, आधी आपण अलाइन होऊया. But you तेव्हा आपण त्या फ्रिक्वेन्सीवर पोहोचू आपण त्या. you are very right. हमारे सबके भीतर, do you remember I had shown you a picture of the chair, the atom, the molecule, नीचे 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 गए. अंत में क्या था? न्यूट्रल था, ऐसा कुछ भी नहीं. नथिंग. म्हणजे let us understand this. This is a glass. This is our objective reality. ये दिख रहा है, हाँ दृश्य है. लेकिन ये दृश्य जो बना है वो कहाँ से बना है? अदृश्य से. क्योंकि इसके भीतर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके जाते हैं, डीप डाउन हमको क्या क्या समझ में आता है? दिखाई तो देता नहीं है. हमें क्या समझ में आता है? वहां पे क्या है? इसके अदृश्य में क्या है? जीरो फील्ड. वेरी गुड. इसके अदृश्य में है जीरो फील्ड का मतलब नथिंगनेस. सो एनी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, हम लोग नॉर्मली, हम सब लोग क्या होते हैं? ध्यान से सुनो. हम सब लोग नॉर्मली ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में इतने घुल मिल जाते हैं या इतने उसमें मिक्स हो जाते हैं कि हमारे लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही रियलिटी रह जाती. लेकिन ऑब्जेक्टिव के भीतर एक सब्जेक्टिविटी है. जैसे हम लोग भी ऑब्जेक्टिव है ना, हमारी एक बॉडी है, माइंड है, सब है. लेकिन ये बॉडी माइंड का भी एक 0 पॉइंट फील्ड है. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. एक्चुअली जो व्यक्ति को ये दोनों का अलाइनमेंट समझ में आ गया, जिस व्यक्ति ने उस अदृश्य को भी जानने लगा, उस अदृश्य के बारे में जगने लगा, तो उसकी सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी अलाइनमेंट में आ जाती है. जैसे कोई भी, अगर इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव पॉजिटिव है. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी है सर, एनर्जी न्यूट्रल एनर्जी है. उसमें से हम 2 पोल्स निकालते हैं, कैथोड और एनोड, नेगेटिव पॉजिटिव. और नेगेटिव पॉजिटिव हम जब प्लग में डालते हैं तभी लाइट जलता है या इक्विपमेंट चालू होता है. जब हम सिर्फ एक ही
वायर अगर प्लग में डालेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, लेकिन वो लगेगा नहीं क्योंकि हमने एक ही डायमेंशन को टच किया है। सो हमारी जिंदगी फुलफिल करने के लिए हमें ये दोनों डायमेंशंस को ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम ऑब्जेक्टिव भी है और हम सब्जेक्टिव भी है। अभी इसी विषय को डीप में ले जाने का प्रोसेस शिवोहम में कर रहा हूं मैं, इसी विषय को और डीप में ले जाने का। लेकिन आप लोगों के लिए जो व्हाइट लाइट मेडिटेशन मैंने बताया है, वहां पे आप अंततः क्या बनते हो? What do you become? What do you become? प्रकाश। Prakash. You become light. Light is the subjective element of your personality. इतना भी अगर जानने लगेंगे आप तो आप अलाइनमेंट में आने लगेंगे। Are you clear? This is alignment. ब्लॉक रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं? टैपिंग। टैपिंग। करेक्ट। जैसे नितिन ने कहा शुरुआत में कि आई एम सीरियसली टैपिंग, क्लीनिंग। मीनल ने बंबई में एडवांस बंबई के प्रोग्राम में किसी से पूछा, नहीं एक व्यक्ति ने वहां पे टेस्टिमोनियल देते हुए कहा कि मैंने 1-2 दिन छोड़ के एक भी दिन टैपिंग मिस नहीं किया है। तो ऐसी ही कुछ डिस्कशंस हुई और मीनल ने एक व्यक्ति से पूछा कि तुमने मनी उपासना में कितने बार टैपिंग किया है? जैसे इस औरत ने ऑल द डेज किया है, तुमने कितना किया है टैपिंग? सो यू विल बी सरप्राइज्ड, उस आदमी ने कहा कि मैंने एक बार भी टैपिंग नहीं किया है। अभी मनी उपासना का फंक्शन टैपिंग पे निर्भर है, क्लीनिंग पे निर्भर है। तुमने क्लीनिंग ही नहीं किया है एंड इफ यू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू हैपन, नहीं होगा। तो उसका जवाब क्या था कि नहीं, मैं इधर सेशन में आता हूं, मैं सेशन सुनता हूं तो मेरे काम हो जाते हैं। सो फिर टैपिंग की जरूरत क्या है? मेरे दिमाग में जो है, मैं सेशन के लिए आ जाता हूं और ऐसा कुछ चार्जिंग हो जाता है, मेरे काम हो जाते हैं, फिर टैपिंग क्यों करूं? ये हालांकि उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन ये सही नहीं है। सिर्फ काम होने के लिए हम मनी उपासना में नहीं आते हैं। वी आर कमिंग हियर, जैसे हम जिम में जाते हैं, वहां पे फोटोज बिटोज लगाए रहते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ किए हुए लोगों को, ऐसे वैसे, सिर्फ फोटो देख के वापस आ गए तो अच्छा लगता है ना, ऐसे सब इतना बिड़की बिड़की रहता है उनको। फोटो देख के आया, अच्छा लगा रहे, नहीं, वो कॉस्मेटिक है। यू हैव टू डू दैट जॉब। और हम लोगों का प्रॉब्लम ही ये है कि हमको करना नहीं है कुछ, इसलिए भक्ति मार्ग सबसे आसान है ना। उधर जाके फूल चढ़ाया, तेल डाल दिया, दिया जलाया, 2 अगरबत्ती जलाया, प्रसाद रखा और भगवान को कहा कि बाकी का अब देखो, ये अभी मैंने दिया है। बट दैट डजंट हैपन, क्योंकि इफ दिस फॉर्मूला वुड हैव वर्कड, people would have been happy. In spite of this, people are not happy. There is a lady जो आउट ऑफ महाराष्ट्र रहती है, she joined मनी उपासना लास्ट ईयर, और उसके
ओवरऑल पर्सनालिटी में इतना फर्क होने लगा कि उसने ट्रक भर के लोग लाए हैं मीनल के पास कंसल्टेशन के लिए। उसने लाए नहीं है, ये एग्जैजरेशन है मेरा, ट्रक भर के, बट सब फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स आर कमिंग टू मीनल देखने के बाद कि अरे ऐसा इसमें तुम लोगों ने क्या जादू किया। हमने कुछ जादू नहीं किया, हमने आप लोगों को जादू कैसे करना है ये सिखाया। Are you understanding? So remember, tapping is something very, very important, which do it very seriously. The third thing which I am going to talk in detail today is how to change our frequency. Listen to me very carefully and just don't listen to me. चेक करो कि ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं, whether you are following these points. Are you all ready? If you want to take a kagad and a pen, so you can write कि point number 1, am I doing it or not? Yes, no, yeah, 1 to 10 is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना कर रहे हो? तो आपको एक रिकॉर्ड, आपका रिकॉर्ड कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मिल जाएगा, आपको आपका एनालिसिस हो जाएगा कि आप कितने % पास हुए हैं इस परीक्षा में। क्लियर है? Yes, sir. Yeah. The first thing is accepting life as it unfolds. There are two things, दो चीजें हैं हमारी जिंदगी में। जब हमारे मन के विरुद्ध में जब कोई चीज घटती है तो हम इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करते हैं। हमारे मन को जो चाहिए वैसी अगर घटती है तो वी लाइक इट। जब मन को जो नहीं चाहिए वैसी घटती है तब हम रिजेक्ट करते हैं। When I am saying कि accept a situation, accepting a situation, that means कि जो मन के विरुद्ध में घटा है उसको चेंज करो, उसको रिपेयर करो, लेकिन उसको फाइट मत करो, उसको कर्स मत करो। Are you understanding? उसको रेजिस्ट मत करो कि यार ये क्यों हुआ मेरे साथ। दिन रात फिर वही चक्कर दिन में रहता है कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। क्योंकि हम जो हुआ है उसको स्वीकारते नहीं है, उसको हम नाकारते हैं। So the first point to change your frequency is to accept yourself as you are. बहुत सारे लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते। हमने मेरे ख्याल से कभी 20-22 साल पहले जब मैंने पहली बार टैपिंग सिखाया लोगों को, तो वहां पे स्टेटमेंट जब हम करते हैं तब कहते हैं कि आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। कितने लोग ऐसे थे जिनको ये स्टेटमेंट बोलने को भी तकलीफ होती थी। वो आके हमको बोलते थे कि आप बोल रहे हो इसलिए हम ये बोल रहे हैं,
लेकिन नीदर वी लव अवर सेल्व्स नॉर वी एक्सेप्ट अवर सेल्व्स। जैसे भी हम हैं, जैसे भी है, फर्स्ट वी शुड एक्सेप्ट अवर सेल्फ। हमारे अंदर कुछ खामियां होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगे, ओके फाइन, डोंट डिसरिगार्ड योरसेल्फ। आर यू क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट? एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट अ सिचुएशन। एक्सेप्ट अ सिचुएशन का मतलब ये नहीं कि कुछ अगर अनप्लेजेंट हो गया तो उसको भी हाँ बोलो। हाँ बोलने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मन ही मन में उससे संघर्ष मत करो। संघर्ष से वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्लियर? द सेकंड पॉइंट सेम है और थोड़ा सा उसको मैं फाइनर बना रहा हूं। लव योरसेल्फ। Love yourself. I know so many people who hate themselves. और सुनो, एक तो खुद को हेट करते हैं और इस चीज को हेट करते हैं कि जिंदगी में कोई उनसे प्यार नहीं करता। जब आप ही आपसे प्यार नहीं करोगे तो जिंदगी में कोई भी आपसे प्यार करने की आपने दरवाजे ही खुले नहीं रखे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। वॉट एवर यू आर, जैसे एक्सेप्टेंस कहा मैंने, एक स्टेप आगे जाके यू शुड फील love for yourself. Now 1 to 10 में आप देखिए कि कितना आप, 10 is you give 10 out of 10, you love yourself totally. Now evaluate yourself कि कितना मार्क दोगे आप 1 to 10 के स्केल में। क्लियर है? Should I go ahead? Yes. The third point is also very, very significant to change your frequency and very, very important. The third point is forgive yourself. जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियां हो सकती है जिंदगी में। हमारे वजह से कुछ अनप्लेजेंट किसी और के जिंदगी में होता है। हमारे बचपन में ऐसी चीजें घटती है हमसे। बहुत सारे लोग या तो सेक्सुअली इंक्लाइंड होते हैं, घर के ही किसी व्यक्ति से उनके सेक्सुअल संबंध बन जाते हैं, कोई लोग उनको सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, या हम कुछ बचपन में चोरी करते हैं, या कुछ हमसे हो जाता है। मैंने ये देखा है कि ये ऐसी घटनाएं लोग उनके भीतर जमा करके कैरी करते हैं, and at a deep level of their existence they again don't forgive themselves. उनको खुद वो अपराधी है ऐसे लगते हैं। Now you relate this to your life, आपके हिसाब से उसको relate करिए। और अगर for whatever reason आप खुद को दोषी मानते हैं, या आप खुद को किसी भी रीजन से
अपराधी फील करते हैं तो forgive yourself, and by just tapping it becomes very easier कि इस वजह से मैं खुद को दोषी ठहराता हूं, मैं अपराधी फील करता हूं. However, at a deep level, I love and accept and forgive myself. Tap this. If you are not able to get in terms, tap and forgive yourself. जितना हो सकता है उतना forgive yourself. Clear है? Should I go to the fourth point? The Yes. fourth point is, on a daily basis, count your blessings. अभी ये मीनल यांना आपण दिलं होतं काय काउंट करायचं ब्लेसिंग्स? नाही ते सगळं ऍडव्हान्स आहे. हा पण असू दे. ते एनर्जी लॉक वगैरे ते सगळं. ओके ओके फाइन. बट ये कोई रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है. What is the meaning of counting your blessings? Sapna, can you tell me? ग्रॅटिट्यूड म्हणजे सगळ्या गोष्टींसाठी ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करणं. Very good, very good. But let's not make it vague. Have you written down? No. For what are you grateful for? Sir, for everything, for the eyes, for because you can see everything, for the money which you have, you can spend. वही बोल रहा हूं मैं कि saying this for everything is different. Have you written it down? Write it down. Yes. Yes. मेरे पास 17 चीजें हैं. I have written down 17 things for which I am grateful for. Whatever I feel grateful for. So till the time you don't write it down, it is not defined in your brain. Or every day, I normally do it when I go to bed. I think of all those 17 things. मुश्किल होता है याद करने में. सो आंख बंद करके आप अगर याद नहीं कर पाते हो तो जब सोने से पहले आंख खुली है तब पढ़िए. I am grateful for my house, my health, the opportunities in my life, my family, the money that I have in my life, the loving members that I have in my life, the support systems that I have in my life. जो भी आपको लगता है कि these are things which are your blessings. Normally mind ऐसा होता है कि वो जो चीज हमारे पास नहीं है उसी के बारे में आपसे क्या कहते हैं, it makes you think वही of दिखा that. दो. It hardly makes you think or acknowledge what you have. But if you have to change your frequency, you have to consciously count your blessings. Clear? So write it down and then read it every day जब तक आपको वो by heart नहीं हो जाते.
The fifth thing, very important for changing your frequency. The fifth thing is focus on what you can give. We are never focused on that. ऐसा नहीं कि वो कुछ बड़ी चीज ही होनी चाहिए, बट हमको इतना, our focus is on receiving, कहां से क्या मिलता है, तुम क्या देते हो. There is a shift that takes place. और इधर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि अनिल कलानी, I know Anil for many years now, because Anil is from Kolhapur, and Anil used to attend my programs, even I think before I started doing my programs in Pune and Mumbai. But whenever Anil gets an opportunity, Anil will send something to me. हर एक मैंगो सीजन में अनिल मैंगो तो भेजेगा ही. अनिल के घर में कुछ मैंगो नहीं उगता है. थैंक यू सर. आई रिमेम्बर हम जो ये शिवोहम जैसा प्रोग्राम पहले करते थे ना, हम वो पूना के नजदीक में एक रिसोर्ट था वेल्ले नाम के गांव में, वहां पे हम ये प्रोग्राम करते थे. अनिल कोल्हापुर से इतनी बड़ी बड़ी बैग्स भर के लाता था. वो उधर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ ना कुछ देने के लिए, इतने ही नहीं तो जो वहां पे वर्कर्स थे, होटल के वर्कर्स, उसका अनिल से कोई संबंध नहीं है, उनके लिए, हमारे जो वर्कर्स थे उनके लिए अनिल वाज द ओनली पर्सन जो भर भर के लेके आता था टू गिव. क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से ये चीज किसी को ध्यान में भी नहीं रहेगी कि अनिल ने हमको ये दिया था. बट अनिल डज हिज जॉब. बहुत कम लोगों में ये आदत होती है. खुशी होती है देने के लिए, खुशी. Exactly. The moment you feel good while giving, the shift takes place. Till the time you don't feel good, अभी इसने बोला है इसलिए कुछ तो देना पड़ेगा यार, ये भावना से दोगे तो देने में कोई भी मतलब नहीं है. Remember this. Whatever. Make. अभी ये एग्जाम्स हुए, कितने लोग हमारे जान पहचान वाले, कितनों के बच्चे कुछ अच्छे मार्क लेके पास हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो है. We can give something to them. But that tendency to give, because there are so many ladies in the group now, घर में जो बचा हुआ खाना होता है वो भी देने के लिए बहुत ताकत लगती है. वो फ्रिज में रखेंगे, वो 3 दिन के बाद काम वाले को देंगे, लेकिन पहले दिन नहीं देंगे, खुद भी नहीं खाएंगे. थिंक ओवर इट. इट इज अ वेरी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट मसल टू बी डेवलप्ड. इजी नहीं है. और इसलिए आप लोगों को 50 रुपए वाला ये मालूम है ना, ऑल ऑफ यू नो दैट 50 रुपीज जो हम सिखाते हैं नॉर्मली मनी उपासना में, ये ग्रुप में हमने सिखाया नहीं, मालूम नहीं. हम एक चीज ऐसे सिखाते हैं, नहीं सिखाया. नहीं सिखाया. हम ऐसी एक चीज सिखाते हैं कि आप या तो हफ्ते में, या हफ्ता बहुत ही अगर आपको कम लग रहा है तो आप
15 days में एक 50 रुपए की नोट कहीं पर छोड़ आइए, रास्ते में फेंक देना। Sir, I have one experience. Yes, I'm please. sorry I'm disturbing you. No, you don't know, you're not disturbing. सर आई हैव मैंने ये पढ़ा था या मैंने YouTube पे कहीं तो देखा था कि गिव समथिंग अननोइंगली टू द पर्सन हु डिजर्व्स इट। अननोइंगली मतलब तुमने दिया ऐसा उनको बताना नहीं है, उनके पास में है। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड यू विल गेट 10 folds, नॉट बिकॉज आई विल गेट 10 folds बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। सो मेरी जो मेड आती है खाना बनाने के लिए, वेरी नाइस पर्सन शी इज, but she never has money in her purse, never ever has money in her purse. So she had gone to pluck a कड़ी पत्ता, तो मैंने उसके बैग में 200 रुपए ऐसे गपचुप डाल दिए जस्ट, और बाहर आई। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, ये नहीं हुआ। सर बिलीव मैंने ये सुबह किया था, शाम को मेरे को 20,000 IT रिफंड मिला, 20,000 एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज टू मच। एवढं मला सांगायचं होतं, दिस वर्क्स एंड दिस रियली वर्क्स। But यहाँ पे ना you did it with a known person. I am taking it one step further. You at least know किसको आपने मदद किया है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, नहीं इसमें मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो 4th पॉइंट है ना हमारा डिटैचमेंट, आई एम ब्रिंगिंग दैट ऑल्सो हियर। पैसा एक ऐसी चीज है जिसको हम ऐसे चिपकते हैं या ऐसे चिपके हुए हैं कि रिक्शा वाले के पास अगर 2 रुपए नहीं है तो हम 10 मिनट रुकेंगे, लेकिन 2 रुपए छोड़ेंगे नहीं। हम इतने अटैच्ड है पैसे से भी, एंड दिस अटैचमेंट instead of becoming the law of attraction becomes the law of repulsion. So ये attachment कहीं तो break करना चाहिए। That is the reason, leave it। अभी मैं परसों ही सोच रहा था, of course you can leave it anywhere, you can leave it in a mall। आपको लगेगा कि 50 रुपए छोड़ने में भी इतना हेवीनेस लगता है ना, शुरुआत में बहुत हेवीनेस लगता है। यू कैन लीव इट एट अ मॉल, यू कैन लीव इट इन अ लिफ्ट। यू विल से कि अरे लिफ्ट में किसी अच्छे आदमी को मिलेगा। अरे अच्छे को मिलने दो या बुरे को मिलने दो। कई लोग बोलते हैं नहीं वो 50 रुपए से आदमी दारू पिएगा, वो दारू पीने दो या लॉटरी खेलने दो, इसका आपसे कोई भी मतलब। डिटैचमेंट इज डिटैचमेंट। We are using two things here, the dimension of giving and the dimension of detaching from money, because पैसे से चिपकोगे। अगर हम ऐसे इमेजिन करेंगे, इमेजिन you have say a wife or a husband जो आपसे या एनीबडी जो आपसे बहुत प्यार करता है, हाँ, सो यू लाइक टू होल्ड दैट पर्सन क्लोज टू यू, दैट पर्सन ऑल्सो होल्ड्स यू क्लोज टू हर और हिम, बट वो छोड़ते ही नहीं, आप बहुत प्यार है आप, लेकिन वो आपको पकड़ के रखेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। कैसे लगेगा? प्यार है, घुसमट हो जाएगी। वही घुसमट पैसे से होती है, लेकिन हमको बचपन से ऐसे ही हम बड़े हुए। दैट चिपकनेस, एक्स्ट्रा चिपकूपना है ना, वो पैसे को भी घुसमट क्रिएट करता है। So this is a simple, that is why you will see जो सुपर रिच पीपल है, they will go out of the way to do so much of charity। फिर वो तीर्थ क्षेत्र में
क्या कहते हैं वो धर्मशाला क्रिएट करेंगे, वो हॉस्पिटल्स बांध देंगे, they will give in so much of charity, because that is the secret of receiving. But normally people don't understand. ये लोगों को समझ में नहीं आता है. बहुत सारे लोग बताने के बाद भी 50 रुपए का नोट नहीं स्पेयर कर सकते. Think over it. See, if you really want to change your frequency, this is one thing that we need to do. The sixth thing that I'm going to tell you is clean your blocks daily. अगर कभी मिस हो गया गलती से, तो just do dry tapping, release, 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 release. Do dry tapping, but do it. Clean every day. Right? The seventh thing that is very important to raise your frequency is self-talk. What is self-talk? The first self-talk is any unpleasant experience अगर होता है, मन के विरुद्ध में कुछ होता है, तो instead of क्या कहते हैं उसको, instead of getting angry or whatever, saying it's okay, it's okay. That's the first mantra. It's okay is the first mantra. It will change your frequency. It may not happen in all situations, but you keep this in your mind. You have to be okay. It's okay. You have to say ki yes, I have the capacity to do this. You have to convince and rewire your brain. Your brain is wired negatively. You have to rewire it. You have to say, yes, I can do it. I have the capacity to do it. I will do it. I have the courage. I have the strength. I can rise above my problems. You have to reprogram, rewire your brain. Something very, very important. The eighth thing is very important. ये जो process है हमारा in changing frequencies, the eighth thing is very important. It is to find some time, get away of your mobiles, get away of everything जो भी आपको डिस्टर्ब करता है, उसको बाजू में रखिए और एक 5 मिनट आपके लिए रखिए. Just sit quiet and feel. इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं नॉर्मली सिखाता हूं, जिसको एक बहुत ही बड़े अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने डिवाइस किया, तैयार किया. उस इंस्टीट्यूट का नाम है हार्ट मैथ्स फाउंडेशन. HEARTMATHS, हार्ट मैथ्स. सो ये फाउंडेशन ने ये टेक्निक डेवलप की है कि चुपचाप बैठे हैं तो आपके चेस्ट के बीच में से ऐसा इमेजिन करिए कि यहां से आप बहुत अच्छा प्लेजेंट आनंददायी सांस ले रहे हैं, टेकिंग ब्रीदिंग इन फ्रॉम योर ब्रेथ फ्रॉम योर चेस्ट and breathing out from your chest. Breathing in from your chest
ऐसा फील करिए कि ये जो अपने बहुत ही ब्राइट आनंद जो दे सकता है, ऐसी सांस अंदर ली है, प्यार भरी सांस अंदर ली है, इस सांस ने आपकी सारी बॉडी भर गई है। एंड लीव इट आउट फ्रॉम द चेस्ट। डू इट फॉर 10 times. This is known as heart-brain coherence meditation. And this changes your frequency to a considerable extent. वो पानी का एक्सरसाइज आप लोगों ने किया क्या? नहीं किया? येस सर, किया सर. नहीं किया बोल रही है निवेदिता। 2 ग्लास सर एक ही बार किया, बाद में नहीं किया। करना चाहिए ना। यू कैन सी मिरेकल्स। अभी आपको ही मिरेकल मेकर बनना है। डू इट एंड सी। आपको शुरुआत में विश्वास नहीं लगेगा, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा वो इतना सूक्ष्म है, और जितना सूक्ष्म है ना, कोई भी चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी वो पावरफुल होती है। पावरफुल होती है। सर जो आपने अभी बताया ना, ये हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, तो इसका मैंने किया, ये पहली बार सुना, लेकिन ये इसका अनुभव मैंने किया है। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिविटी से भर गई हूँ, तो ना अपने आप वो पॉजिटिविटी ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया में प्रसारित करूँ, और वो अपने आप हो भी जाती है, अपने बॉडी से छूटती है वो, और खुद को बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था। रिमेम्बर वन थिंग, बिकॉज मे बी ये ऐसी चीजें आप लोग कर रहे हो, इसलिए आप मनी उपासना में हो। मनी उपासना इज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस, लेकिन एवरीबडी डजंट कम इनटू मनी उपासना। व्हाई? अगर हम 10 साल से मनी उपासना कर रहे हैं, हम इतने लोगों को हमने इतने मिराकुलस रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कराए हैं, तो फिर इतने लोग प्रॉब्लम में है, वो मनी उपासना में क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आते? क्यों 4000 लोग नहीं आते मनी उपासना करने के लिए? क्यों 400 लोग आते? उस Because फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. yes, at large people are not at that frequency. उनको फुकट में भी आके बिठाओ ना, उनके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। So because आप लोगों में वो जो फ्रीक्वेंसी आपकी कहीं ना कहीं तो हायर होगी, फॉर वॉट एवर रीजन, इसलिए यू आर हियर, और एल्स यू वुड नॉट हैव बीन। कोई और पैसा भरेगा आपके लिए, फिर भी आप नहीं बैठेंगे इधर। सो गुड, समझ में आ गया? यू वांट टू Yes. से एनीथिंग मंजू? आपने हाथ ऐसे किए। हाँ, वो तो ग्लास के पानी के थोड़े सवाल पूछने थे, पूछते हो क्या अभी? हाँ, वो पूछो। मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो बताया था ना, ग्लास में पानी लेकर उसको समस्या बताने का, वो मैं रोज कर रही हूँ। तो इसमें से सवाल था कि अगर 15-20 समस्या है तो रोज एक लेना है, या एक समस्या 8 दिन लेकर दूसरी समस्या लेनी है, नहीं, या एक समस्या का समाधान मिलने के बाद दूसरी लेनी है? कैसा ऐसा करना कुछ चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार में 4 समस्या अगर आपकी है, तो एक हाँ। बार एक ग्लास में करिए, एक बार दूसरी हाँ। समस्या के लिए दूसरा ग्लास, तीसरी समस्या के लिए तीसरा ग्लास। तीसरा ग्लास म्हणजे तीसरा ग्लास आणायचा नाही, ग्लास हाँ. तोच, पण यू हाँ. कैन डू इट सेपरेटली फॉर 3 times 4 times। एक ही दिन में ऐसा करना है? एक ही समय पर कर सकते हैं, कर सकते हैं? इफ यू वांट यू कैन डू इट। ओके ओके। वो होने के बाद ही दूसरा करना है ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अलाइन
हो गया तो हो गया ना। ऐसे मैक्सिमम कितने ले सकते हैं? कितने लेने हैं आप? 4 मुझे बहुत सारे होते हैं लेकिन ज्यादा बहुत तो सारे नहीं लोग, लेते। बहुत सारे लोग, आपको टाइम है, बहुत सारे लोग, खेलते बैठो, क्या प्रॉब्लम है? पानी कितना पीना इतना आधा ग्लास, आपको है? एक घोट लो। ओके। इट इज नॉट अबाउट पानी, हाँ इट इज अबाउट फाइंडिंग द रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. हाँ पाणी म्हणजे मग कोण म्हणाल की त्यात दारू घालून केलं तर चालेल काय? तुम्हाला करायचं असेल तर करा, प्रॉब्लेम वो नहीं है. इट इज नॉट अबाउट पानी और दारू. और आपने ये भी बताया कि प्रेफरेबली सोने से पहले करना है और सो जाना है, तो इसके बाद गोल्डन लाइट मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं क्या ये पानी पीने के बाद? कर सकते हैं, कर सकते हैं. मैं रोज कर रही हूँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आई मेडिटेशन वांट भी। टू, हाँ करो करो. आई वांट टू सी नो क्या क्या होता है आपके जिंदगी में. आप लोग बहुत मुश्किल से मुंह खोलते हैं, पर लेकिन ठीक है. यस नितिन, सर एक मिनट है. नितिन बोलो. कौन बोला है? हाँ सर. नितिन बोलो ना. अच्छा Sir, I think ma'am still wants to say something. स्पीक. नाही यू वांट टू स्पीक? सर चालेल. सर मला विचारायचं होतं की सुदर्शन यंत्राचं आपण जे मेडिटेशन सांगितलं आहे त्याच्यात पण खूप सारे अफर्मेशन्स बोलू शकतो का? इट इज अ व्हेरी सूक्ष्म अलाइनमेंट. त्यात काय नको आहे आपल्याला. तुम्ही सुदर्शन आहात. लेफ्ट हँड साइड यू हैव द श्री यंत्र, राइट हँड साइड यू हैव द कुबेर यंत्र. You just create a triangle येस. and feel that energy. खत्म हो गई बात. कुछ नहीं, बात नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं. ओके. नितिन बोलो. Sir, I got a chance to see that series you recommended. Not here, but Sarvam Shaktimayam. Oh, life changing, sir. Wow. अच्छा है ना? बहुत Good. ज्यादा सर. वो सब कुछ यही है. सब is कुछ all- यही है. It is all within. वो उसमें वो जो उन्होंने मुहावरा बोला था, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन बन माही. You know, everything is inside and we are looking for it outside. Outside. ओरिएंटेशन ही आउटसाइड है ना, क्योंकि इंद्रिय बाहर जाती है. इंद्रिय उल्टी नहीं है. Yes, sir. ये जो 5 इंद्रिय है, कान सुनता है बाहर का, आंख देखता है बाहर का, नाक सूंघता है बाहर का, टेस्ट बाहर की, स्पर्श बाहर का. हम खुद को स्पर्श नहीं कर सकते ना. कर सकते हैं, लेकिन हमने हाथ दबाया और किसी और ने हाथ या पैर दबाया, अच्छा कौन सा लगता है? दूसरा वाला सर. हाँ, क्योंकि हमारे इंद्रिय ओरिएंटेड ही बाहर के लिए है. तो ऑब्वियसली उनको जो ढूंढना है वो ढूंढेंगे कहाँ? बाहर ही ढूंढेंगे, क्योंकि उनको अंदर जाने का क्या कहते हैं, रास्ता नहीं पता सर शायद. रास्ता ही नहीं पता. बिकॉज दे आर ओरिएंटेड आउटसाइड. एंड दिस इज वेयर ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे सर. ढूंढने की हाँ? कोशिश भी नहीं कर रहे. क्यों ढूंढेंगे भाई? जब मुझे बाहर एक चीज चाहिए, पैसा चाहिए जो बाहर है, पैसा मिलता है, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है पैसा कमाना. मेरा पर्पस है उस पैसे से ये खरीदना, वो खरीदना, एक शादी करना, एक 2-4 बच्चे निकालना, बच्चों को बड़ा कर देना, उनको कहीं पढ़ाई कर देना, जो चाहिए फॉरेन में इधर उधर उधर दुनिया घूम आना, और एंड में पैसा बना के रख के एंड में रिटायर हो जाना. इससे ज्यादा पर्पस क्या है आदमी का? वो जाएगा क्यों भीतर? राइट सर. He is oriented outside. So incidentally Nitin has मैं बात करने ही वाला था. आप लोग भी वो सीरियल देखिए, वो Z5 पे है,
Yes, उस sir. सीरियल का नाम है सर्वम शक्तिमयम। Namrata, you are constantly so distracted today that you are not connected to the session at all. Sir, you're I am talking to me, right? Yes, yes. I am I am seeing so- this. I am seeing this from the beginning. You are so I'm sorry. distracted. No, मुझे sorry बोलने से कुछ फायदा नहीं. You are losing. क्योंकि Yeah. ये अगर एक इतना ये ट्रांसफॉर्मेशनल हम कुछ कर रहे हैं और आप दूसरा कुछ करने में अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ह्यूमन ब्रेन कैन अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग एट वन टाइम, नॉट टू थिंग्स. True, sir. True, sir. So you are getting distracted. अंदर कुछ Yes, जा ही sir. नहीं रहा. So if you हाँ, want sir. it that way, go ahead. No. मला काही Yes, फरक नाही yes. पडत. Coming back to track. Thank you. Okay. Sir, one of the Shakti Peeth is in Kolhapur only. Yeah. One of the Shakti Peeths. That's very interesting. Leave aside all those Shakti Peeths. There is nothing in that Shakti Peeth. That is why in that serial also they have shown कि शक्ति पीठ में जाने से कुछ फायदा, उनका फर्क नहीं पड़ता है. Right, sir. Right. Exactly. It is the journey. और उनको जर्नी दिखाने के लिए कुछ तो दिखाना था, इसलिए उन्होंने शक्ति पीठ दिखाए. उसका मतलब ऐसा नहीं है कि शक्ति पीठ में शक्ति है. I know, sir. शक्ति तो भीतर है ना. हाँ सर, वो वही बोलते हैं ना कि पीठ, हाँ मंदिर गुरुद्वारा जाने से सब ढूंढते हैं, वही हाँ चीज है. It's we हाँ, are लेकिन वहां पे looking- कुछ नहीं है, वो भीतर है. लेकिन उनको कुछ मीडियम यूज करना था, इसलिए Right. दे यूज दो शक्तिपीठ. शक्तिपीठ के अलावा उन्होंने अगर हॉलिडे पिकनिक पॉइंट्स यूज किए होते तो इतना तो- इफेक्ट नहीं लगता था. दैट इज Right. व्हाई अभी इन द एंड ऑफ द सीरियल वो जो ये लेखक है उसकी मेमोरी जाने का प्रयोजन क्या है? क्यों उसके में जो उसको मिला है वो रिटेन क्यों नहीं करने दिया डायरेक्टर ने या राइटर ने? उसको क्या है, डिमेंशिया में क्यों डाल दिया? याद नहीं रहता. पर्पस क्या है? आई डोंट नो, दैट उनका सवाल है. बट बिसाइड्स दैट द एंटायर जर्नी इज टू फाइंड दैट. एनीवे, सी दैट सीरियल. The 9th point is very important point. Everyone remember, अभी किसी ने मुझे एक मेल किया है, क्या इला सर, आपण भक्ती मार्ग आणि ध्यान मार्गावर असताना नॉनव्हेज आणि दारू पिणे योग्य आहे की नाही? याला काय उत्तर देऊ मी? योग्य आहे की नाही ह्याचा आणि मार्गाचा काही संबंधच नाही ना. मार्ग इज अ डिफरंट थिंग ऑल टुगेदर. Anyway, the 9th thing is feel deserving. फार अवघड आहे ही गोष्ट. Feel deserving. हमको बचपन से हमारे माँ बाप ने शायद किसी ने डिजर्विंग बनाया ही नहीं. एक तो कंपेयर किया बहुत सारे लोगों को बचपन में, अगर कुछ करना चाहते हैं तो डिस्करेज किया, गाली दी, चुप बैठने कहा, काय म्हणतात त्याला, हंतरून बघून पाय पसरायला सांगितलं. इसका मतलब तुम डिजर्विंग नहीं हो. यही हमारे जहन में है that I am not deserving.
और इसलिए I have seen people who have so much of money, so much कि उनके शायद 10 जनरेशंस खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा जिनके पास है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो भिखारी की तरह आयुष्य जीते हैं। The kind of scooters they use, the kind of cars they use, the kind of house that they live in, because money doesn't make you rich. It is your deservingness that makes you rich. So feel deserving. सर Yeah, नम्रता यार yeah, Naman. सर हे लहानपणापासून हम सुनते आ रहे हैं. आवाज गेला. हाँ, हॅलो. हाँ बोल. हा, लोकांच्या डोळ्यात येतं. हाऊ कॅन वी जस्टिफाय दिस सर? We don't have to justify it. It is not justifiable. म्हणजे हे चुकीचं आहे ना सर विचार करणं? 100%. 100%. बरोबर. थँक्यू. आत्ताच आठवड्याभरापूर्वी मी हे ऐकलंय म्हणून मला जरा थोडं विचारायचं. थँक्यू. That is now, for example, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं for the last 25 years, एक तो I live in a place like Kolhapur, so there are no premium, क्या कहते हैं, house, क्या बोलते हैं वो, townships. There are no townships in Kolhapur. There are small colonies. और जो कॉलोनी में मैं रहता हूं वो एक सामान्य, not a very high class colony. एक तो high class colony नहीं है कोल्हापुर में. अभी कुछ हुआ रहेंगे तो मालूम नहीं मुझे, but I stay in an average colony. The buildings also are average, but I stayed here because of my parents, because they didn't want to move, and my father passed away 2 years ago. फिर उसके बाद I booked a flat elsewhere और कोविड चालू हो गया, and then वो सब काम रुक गया, तो वो भी रुक गया, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया. कहने का मतलब इधर मेरे कॉलोनी में 8 बिल्डिंग है, नॉट वेरी बिग. मैं जिस बिल्डिंग में अभी रहता हूँ वो बिल्डिंग में 3 लोग रहते हैं. There is a ground floor, there is a first floor and there is a second floor. Second floor पूरा मेरे पास है, बीच वाला फ्लोर का आधा भाग मेरे पास है, तो उधर एक आदमी रहता है और नीचे एक आदमी. 3 people staying in one building. तो इतनी छोटी वो बिल्डिंग्स है, उतनी छोटी कॉलोनी. यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास ऑल्टो, मारुति स्विफ्ट, पुरानी सेंट्रो, ऐसे टाइप की गाड़ियां हैं. मोस्टली पीपल हैव 2-wheelers. I am the only person staying in that colony who has 4 premium cars, out of which one is a Mercedes, the other is a hybrid Camry, even the third is a hybrid Camry, the fourth is an electric MG. My wife yesterday was saying this, की लोकांच्या डोळ्यात येत नसेल. येत असणार ना. लोकांच्या डोळ्यात येत नाही असं नाही, उसका मेरा क्या संबंध है? सो मेरे सामने जो घर में आदमी रहता है वो पहले नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन का था,
उसके पास एक स्विफ्ट नाम की गाड़ी है। ओवर टाइम वो अभी उसका स्किन के ऊपर ऐसा सब काला आ गया है, सब वो काला हो गया है। आउट ऑफ जेलेसी जल गया है। जलेगा ही ना। और वो एक ही आदमी है जिसके पास बंगला है। ये हमारे कॉलोनी के कंपाउंड में बाकी सब बिल्डिंग्स है, वो एक ही आदमी है जिसके पास बंगला है। लेकिन वो उसकी सोच या उसकी डिजर्विंगनेस इतनी कम है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ बंगला ही लिव्स लाइक आई डोंट नो व्हाट। वो काला हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसकी तो जलेगी ना जब वो सामने मुझे उसके घर के ही सामने एक मर्सिडीज दिखे। हमारे घर में आई एम नॉट बोस्टिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द डिजर्विंगनेस। हमारे घर में अभी इस वक्त 10 लोग काम करते हैं, 10 people, एंड देयर आर पीपल इन आवर कॉलोनी जिनके घर में बर्तन मांजने के लिए भी पाई नहीं। तो इमेजिन करो वो लोगों की ओनली मूलाधार नहीं, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार से जड़फड़ाट होता रहेगा। इट इज नेचुरल। But I am not affected by what you feel. That is your problem, not my problem. But हमको इतना कंडीशन किया है कि लोगों के नजरों में आएगा तो उनकी नजर लग सकती है ना। I don't believe in this nonsense. So I, with all my क्या कहते हैं capacity, I live like a king with my Sir. capacity. सर अशा वेळेस तुम्ही काय विचार करता? मी एकच विचार करतो बाळ. See if you understand. It's very difficult. For me, the other does not exist. म्हणून मी मला पाहिजे ते करतो. थँक्यू मला सर. पाहिजे ते कपडे घालतो. तुम्हाला खुश करायला भगवे कपडे घालून, 4 माळा लावून, टिळा बिळा लावून बसत नाही. तुमच्यावरती मी अवलंबून नाही आहे. माझ्या आत I am sharing with you with what I understand. What you think of me is your business, not mine. सर खूप एम्पॉवरिंग आहे. फार महत्वाचं आहे. ज्याला एवढं कळलं ना वो फ्री हो गया. आणि आय एम फॉर्च्युनेट की नॉट ओनली मला हे कळलं, आय लिव्ह माय लाईफ दॅट वे. चलो आगे जाएंगे ना, खत्म होने का आया टाइम. हाँ तो 10th पॉइंट से ही 11वां पॉइंट है. वो पॉइंट है कि भिखारी की तरह बिहेव मत करो. Sir, you can take remaining in the next session also. अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी 5 मिनट हो गए ना. 5 मिनट दो मेरे को, है ना तेरे पास 5 मिनट? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, आप 9:15 9:20 तक खत्म कर सकते हो. नहीं, और 10 मिनट में हो गया मेरा. हाँ. होटल में जाएंगे तो 50 पैसा टिप रखेंगे. मैंने कल ही ये पूछा कि अगर तुम होटल में जाते हो 4-5 जन, तुम्हारा 3-4 हजार रुपए बिल आता है, टिप कितना रखोगे? सर 10% देतात टिप, म्हणजे डिझर्विंग असतं 10%. 10% डिझर्विंग असतं. आपण किती देतो?
200 रुपये. वगैरे 100 200 20 रुपये. 100 रुपये तरी द्यायला पाहिजेत ना. वो 100 रुपए से उसका क्या होता है नहीं होता है वो बात अलग है. आई फील गुड. लेकिन मैं इतना भिखारी जीन्स से आया हूं. मुझे ऐसे लोग मालूम है कि हस्बैंड मनी उपासना करता है, वाइफ नहीं करती है. और हस्बैंड और वाइफ होटल में जाते हैं तो हस्बैंड को मालूम है कि ये भिखारीपना नहीं करने का है, अपन वो जरा जगा हुआ रहता है. तो वो अगर उसने 50 रुपए के 2 नोट रखे तो वो जब उठता है तब वाइफ उसकी 50 रुपए की 1 नोट निकाल देती है वो टिप में से. आवर इसका इसी का नेक्स्ट पॉइंट है. आवर लाइफ ऑल्सो हैज टू अपग्रेड हाउ वी लिव. What kind of clothes you wear. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि you have to wear a branded thing 24/7. That is not what I am saying. And I don't believe in that. Yes, Nitin. Sir, since you said clothes, I disturbed you in between. Sir, what is this concept of not wearing black color? I don't understand. I want to ask, sir. I want to be more clear about Yes, this. yes, yes. The concept is, I'll explain it to you in English. The concept is known as BALLS. That's the concept. मैं बहुत कंट्रोल किया है मैंने ये सेशन में, क्योंकि नहीं तो मेरी भाषा बहुत कैंडिड होती है. Sir, I'm waiting for that live session to attend someday. I'm eagerly नहीं, waiting. आजकल मैं जरा बंद किया है मैंने, तो कभी कभी करता हूँ. वो मेरे Sir, you recording- proved. Today हाँ? you proved. Today you Nitin, proved. 23rd For me, I Mumbai we was have like live this. session. Where, ma'am? Where, ma'am? 23rd in Mumbai. Mumbai. Okay. What did I prove today? Others doesn't exist. Yeah. You are very bindas. मस्त एकदम छान वाटलं. Because sir, there is so much talking on this color. I mean, you must be knowing more about this. चूतिए लोगों का बाजार है ये. क्षमा करिए मुझे, लेकिन I can't stop. बहुत कंट्रोल किया मैं. तर गुरु नहीं, झाले तुम्ही माझे गुरु. गधे को गधा बोलना चाहिए ना. Yes, sir. कुछ नहीं यार, क्या है? There is no color basically. And basically black is the mother of all colors. That is what, sir. That is what I Yeah. think. I love black and I wear black anywhere. हाँ, अब now you are an actor, तो आपको you have to be aware of what you wear. I'm not talking about black, but you have to be aware of what you wear. अभी ये जो ब्रांडेड का है, आप ऐसे सोसाइटी में जाते हो जहाँ पे वो पिक्चर आया था ना आमिर खान का, वो जहाँ पे वो सब टैग्स लगा के वो शादी में दूल्हा होता है, वो गॉगल को टैग लगाता है, शर्ट को टैग लगाता है, शूज को टैग लगाता है. ऐसा कोई फिल्म था ना, 3 Idiots. वैसे आप वो सोसाइटी में घूमते हो जहाँ पे बाकी के सब आपके पास क्या है इस पर ही आपका वैल्यू बनाते हैं ना. Yes, sir. तो वो ठीक है, दैट इज ऑल राइट, दैट इज बिजनेस. लेकिन I you know when I got inspired, मैं बंबई में रहता था. I was doing films then, and I used to stay in Andheri, और I had a motorcycle, और मैं मोटरसाइकिल पे बहुत बार दादर जाता था. मेरे प्लेस वगैरह दादर में होते थे. And जुहू में every time I used to see Shashi Kapoor in his Mercedes sports car थी शशि कपूर के पास,
वो स्पोर्ट्स कार चलाते थे, एंड invariably Shashi Kapoor used to wear a white pajama and a kurta. I was very young then. I was so inspired. I said, यार जिंदगी में ऐसा टाइम कभी तो आना चाहिए that I should be wearing a pajama and kurta like Shashi Kapoor. कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. And I am fortunate कि मेरी ऐसी जिंदगी evolve हुई कि now invariably I wear what I want to wear. I never bother about what you will think about what I wear. So, सर आपके टाइम में पृथ्वी थिएटर था क्या? हाँ, और क्या, जोर में था. जुहू वाला. तभी शशि कपूर के डॉक्टर ने तो पृथ्वी थिएटर लिया भी नहीं था. It was Shashi Kapoor's wife who was looking after the theater. So, upgrade your life. I'm going to tell you only one point now to end the session. Be very considerate with your family members. It will change your frequency. हम लोगों से इतने अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं और उतना ही बुरा बर्ताव हम हमारे घर के फैमिली मेंबर्स से करते हैं. Very true, sir. We are so reactive. इतना कुछ किसी ने बोल दिया तो हमारी तलवार तो निकल गई. हम दो हाथ करने पे बैठे हुए हैं. अरे फिर बाहर क्यों तुम इतना दुम हिलाते घूमते हो? घर में ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी दुम क्यों ऊपर जाती है? If you want to change your frequency, even this is important. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्ली बन जाओ घर में. अगर घर में शेर बनने की जरूरत है तो शेर बनो. कभी कभी घर के लोग भी ऐसे होते हैं, अगर हम बिल्ली बनते हैं तो वो शेर बनने लगते हैं. उतनी अक्ल तो हमको चाहिए. लेकिन हम वी शुड सी कि कम से कम हम तो घर का वातावरण बिगाड़ने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जितना हो सकता है. बिकॉज इफ वी आर इन हार्मनी, और ये अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली अदर पीपल इन द हाउस विल ऑल्सो स्टार्ट बिहेविंग प्रॉपरली. ये मेरा अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है. ऐसा नहीं कि एकदम राम राज्य आ जाएगा घर में, ऐसा नहीं है. लेकिन we have to minimize. At least we shouldn't be very aggressive, very dominating. Are you understanding? And last point. नहीं, और एक point है which I will explain. Make happiness your purpose, your focus. Then success, money, name, fame, whatever. Focus happiness पे रखो. Then on achieving something, the whole dynamics will change. The last thing is, don't stop doing what you are doing. मनी उपासना खत्म होने के बाद बहुत लोगों की बैटरीज डाउन होती है, फिर 6 महीना वेट करते हैं मनी उपासना शुरू होने के लिए वापस. Don't do that. Don't stop what you are doing. With this, friends, I have given you an overall, and the fourth point, as I said earlier, is detachment, alignment, blocks releasing, changing your frequency. The last, don't get attached to the result.
do your cleansing, things will happen automatically. Give them time. कभी कभी देर लगता है. Are you all clear? सर मुझे तो- पूछना था सर, हम अलाइनमेंट में आने में ना कितना टाइम, मतलब सबका अलग अलग रहता है कि कैसे क्लींजिंग होने के बाद मतलब कितना टाइम लगता है अपने को अलाइनमेंट में आने के लिए सब जैसे? Alignment में आने के लिए basically alignment is the subject of Shivom actually. What अभी very interesting question she has asked. उत्तर है कहा. What happens when you get aligned? Can anyone give me an answer? What will happen to you? How will you know that you are in alignment? Sir, when you are happy and peaceful. किसने उत्तर दिया है? नम्रता ने. Correct. When you feel good with yourself, you are in alignment. Simple. So सुकून वाली कितना अवस्था। टाइम लगेगा? वो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आदमी, ह्यूमन बीइंग एक ही ऐसा ब्रीड है दुनिया में जो खुद से खुश हो सकता है. One who feels that, महक ने बोला कि satisfied also. Yes. What is happiness? Do you know? What is happiness? Happiness is deep satisfaction. Deep satisfaction is happiness. So if you feel happiness inside, you are aligned. Because that core is in harmony. Core is in harmony. You are not in harmony, so you are not getting aligned to the core. If you start if you start becoming happy, satisfied, content, automatically you get aligned with the source. सर विच प्रोटोकॉल में खुद के लिए 3 विशेष और सरोगेट टाइपिंग के लिए 3 विशेष ऐसे ले सकते हैं क्या एक साथ? Meenal, would you like to answer that? सरोगेट टैपिंग आप क्यों कर रहे हो? नॉर्मल प्रोटोकॉल में ही करो ना, किसी और का भी होगा तो भी, कि आपकी इच्छा है ना उसके लाइफ में ये हो जाए. हाँ, उसके लिए और मेरी भी खुद की इच्छा है अलग. हाँ, तो आपकी इच्छा है ना आपके बेटे के लाइफ में ऐसा ऐसा हो जाए, तो सरोगेट क्यों कर रहे हो? आपके विश लिस्ट में ही लो ना. हाँ नहीं, और मेरा खुद का जो अलग इच्छा है मेरी खुद ठीक है की. ना, ये भी उसमें ऐड करो. ऐसे जरूरी नहीं कि 3 ही लेना है. 3 मैंने दिए है, आप 5-6 भी ले सकते हो. अच्छा ठीक है. ठीक है. हाँ, और एक था कि प्री प्रिंटिंग टेक्निक में बताया था कि अल्फा स्टेट में जाकर आज का दिन हैप्पी एनर्जेटिक देखना है, फील करना है, सुनना है, चखना है, देखना है और फील करना है. हाँ, बाकी 5 सेंसेस यूज करने के उसमें करना ऐसा बोला था उसमें. हाँ. तो उसको वो जितना रियल बनाओगे उतना उसको रियल बनाओ. हाँ, उसमें सुनना, चखना, स्मेल करना नहीं होता है, सिर्फ देखना और फील करना होता है. हाँ ठीक है, फील करो. हाँ. चलो फ्रेंड्स, ये वीक में लास्ट वीक का ही प्रोटोकॉल कंटिन्यू करेंगे. एंड देन फॉर द लास्ट सेशन आई विल टेल यू द सीक्वेंस एंड हाउ टू रिपीट एवरीथिंग अगेन. ओके, सो दिस वीक यू विल कंटिन्यू विद द लास्ट वीक्स प्रोटोकॉल इटसेल्फ. ओके, so thank you and good night. All the best. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू. बाय, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट Thursday. बाय.